टैलेंट को प्रमोट करने के लिए क्या कोई नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपके एंड से? कोई स्ट्रेटजीज़ है, कोई आइडियाज़, आइडियोलॉजी, इनोवेशंस हैं कोई जो हमें देखने को मिलेंगी? ऑलवेज ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, एंड आई थिंक दिस क्वेश्चन शुड बी एड्रेस्ड एट द मैक्रो लेवल. And after this race, actually, some of the officials from the GB government approached me, और उन्होंने कहा कि गालिब, you become part of our, ecosystem in Pakistan Sports Board, for instance. और जो आपकी एजुकेशनल और स्पोर्ट्स कंपैटिबिलिटी इन स्कूल सिस्टम, उसको किस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं, and make a resilient environment whereby, healthy nation eventually becomes a wealthy nation in the long run, right? So उसकी compatible forces क्या हो सकती हैं, वो एक अपनी जगह इनिशिएटिव. आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स कि उसको हम किस तरह से ब्रू करें उस इकोसिस्टम को. However, जब मैं टीन्स में था, आई एम नॉट गोइंग बैक, क्वाइट अ फ्यू इयर्स, डेकेड्स बैक, उसमें जो भी हमारा लिमिटेड बजट होता था ना, उसमें कॉम्पिटेंस, इनकरेजमेंट और एक इकोसिस्टम था उस लिमिटेड बजट में, कि आप टैलेंट को आइडेंटिफाई करें और उस टैलेंट को आप प्लग एंड प्ले करके ना डिफरेंट कॉम्पिटेंस लेवल पे, नेशनल, पहले प्रोविंशियल, इंटर प्रोविंशियल, नेशनल पे लेके जाएं. एंड आई विश टुडे, विच आई एम नॉट वेरी मच प्रिवी टू, कि वो होता होगा आज भी. अगर नहीं होता, आई थिंक दैट स्टेप वन दैट शुड बी टेकिंग प्लेस. देखिए, उससे पे टैलेंट इमर्ज होता है. उसकी वजह ये है, जब आप बेंचमार्क्स एस्टैब्लिश करते हैं ना, यानी कि ये चीज़ों की कमियां हैं जो कि अब दोबारा से आनी चाहिए और हाईलाइट होनी चाहिए. बिल्कुल है. यू सी, अब देखिए, पाकिस्तान इज़ नॉट द ओनली कंट्री ऑन द प्लैनेट. We are one of the, nearly 200 countries on the planet. So we have to compete with those competitive forces. And you see, it's the 21st century, so we have to. Choice नहीं है आपके पास. We have no choice. देखें, ये हमारी responsibility है as sort of semi-elder of the community, as a member, कि we have to give back, and that's why I conceived this race, and that's why I wanted to give back. अब उसका आप impact देख रही हैं. There were 7. देख सकते हैं. Everyone is seeing it globally, and that is why you, being the head now as a sportsman person, can actually better relate. And we would also appeal to the government and to all those sectors who are associated with this, कि please do look into this matter so that we can actually hunt and figure out new talent, and there could be much as many new youth youngsters. And on a similar note, ये इसमें एक group of athletes आए at Karakoram Extreme Participation. People from different backgrounds, and they were really good at doing what they are doing. Means biking and running. No one actually, except for one local, there were no other swimmers, unfortunately, because that's my passion. And it's not easy to swim in Atabad Lake, by the way, because one, it's banned, and two, we got special permission to actually create history by having this event as part of that region. Because without swim, it's not a triathlon, right? So, but there were around 19 athletes, combination of runners and bikers at both local and international level. Competence की मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त. That talent has been identified already. We need to just build and nurture that ecosystem, because आप एक legacy छोड़ के जाते हैं. ये हमारा फर्ज है. as a social contribution, कि वो आप एक intergenerational legacy आप छोड़ के जाते हैं. आपने बिल्कुल 100% दुरुस्त बात की. ये बताएं, जब हम बात करते हैं ऑलरेडी जो स्पोर्ट्समैन है हमारे इर्द गिर्द जो काम कर रहे हैं नेशनल लेवल पे भी, और जब भी अपने आप को तैयार करें, आप उनको क्या एडवाइस करेंगे जब हम बात करते हैं कि बीइंग अ स्विमर किन बातों का ख्याल रखा जाए, कौन सी स्ट्रेटजीज़ है जो वो एंड तक लेकर जाए अपने साथ? ऑल्सो हाउ टू बी अ गुड आयरन मैन, स्विस मैन, नॉर्स मैन. ज़रूर अपनी स्ट्रेटजीज़ जो आपने अपनी ज़िंदगी में ड्यूरिंग दोज फेजेस अप्लाई की, मैं चाहूँगी कि आप वो ज़रूर शेयर करें. आई थिंक today's generation is super lucky as compared to, if I place myself उस era में, आपके पास access to technology, आपके पास access to information है, आपके पास आज नहीं, आपको उस मिनट पता चल जाता है किसने कौन सा रिकॉर्ड ब्रेक किया है. यू कैन फॉलो दोज इंडिविजुअल्स. उनकी हर एक की रूटीन्स होती हैं, टेक्निक्स होती हैं. हमें तो कुछ भी नहीं, हमने किताबें पढ़ी थी उस ज़माने. वो मैं कहूँगा मैंने पढ़ी थी स्विमिंग की टेक्निक्स टू इम्प्रूव. बट बाकी बाय किसी का नेशनल टैलेंट होता है, उसका कोच उसको बताता था, यार ये ऐसे कर लो, ये हो जाएगा. अब तो यू आर योर ओन कोच, राइट? सो अगर आपके अंदर विल एंड डिज़ायर टू सक्सीड है कि ये आपका रोल मॉडल है और ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं,
nothing can stop you. You know, and you know the international thresholds to qualify. Olympics इसीलिए होती हैं कि एक वो कट ऑफ होता है, उस कट ऑफ को अचीव करने के बाद then you become part of, you know, equal opportunity performer. And I think it's a great ecosystem. दुख ये होता है कि पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली पहले पहुंच जाता था हॉकी में, अब तो शायद हॉकी में भी नहीं पहुंचता. बट देयर आर यू नो, दुख की बात नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं. एंड नो अपॉर्चुनिटी इज़ लॉस्ट. It's an opportunity missed, and our job is to identify, seize the moment, and build a better future. Not for us, but for the country. ये बताएं कि you have traveled around the world. तो क्या सीखा वहाँ से? कोई ऐसी चीज़ that has stuck in your mind as a good advice, or you just keep it in your heart to use it for your goodwill? And also आप ये भी मुझे बताएं कि क्या आप सजेस्ट करेंगे कि पाकिस्तान का जो नॉर्दर्न एरिया सारा का सारा, वो आप टूरिज्म प्रमोट करने के लिए टूरिस्ट को क्या कहेंगे इस हवाले से कि इज़ इट गुड, worth it to visit or not? Great question. I think जहाँ तक if I in few words relate my global travels with क्या सीखा है, I think discipline is really important. And किसी भी आप country में चले जाए ना, वो मैं और तुम नहीं होता, वो हम होते हैं. ठीक है. So when you are there, you are in it together. And देखें, इंसान जो है ना, चाहे किसी भी रेस रिलीजन का हो, वो पहचान लेता है कि किस माशरे की क्या खसूसियत है, क्या स्ट्रेंथ है और क्या कमी है. सो आई थिंक एज अ कल्चर, एज अ कम्युनिटी, एज अ सोसाइटी, वी नीड टू बिल्ड ऑन दोज वैल्यूज़ ताकि वी कैन कम बैक टुगेदर एंड स्ट्रॉन्गर. वन, एज कम्पेयर टू ग्लोबल. टू, आपका जो टूरिज़म का है, मैं और भी बड़ी चीज़ें अब मैंने कोशिश की हैं. जिस तरह ये इवेंट हुआ, आई थिंक इट्स विल बी एन एनुअल इवेंट विद मल्टीपल ट्रायथलीट्स कमिंग इन, बोथ इंशाल्लाह लोकली एंड ऑल्सो इंटरनेशनली. और जब ये लोग आते हैं ना, दे आर लुकिंग फॉर एन एपिक एडवेंचर. And they don't come alone, they come with a support mechanism. So वो families के साथ आते हैं, वो देखते हैं. So अभी जो एक हमारे यूरोप से आए हुए थे, they came with a family of 7, right? Wow. And typically they will move around with family of 16. वो आधी ख़वातीन इसलिए नहीं आएँ कि उनको जो इमेज था पाकिस्तान का, you know, नोशन जो फैला हुआ है. हाँ, so वो दूसरे दिन उन्होंने जब बताया कि यार ये तो इट्स लाइक होम, राइट. सो वो इमेज शैटर हुआ. वो फिर जाते हुए उन्होंने कहा जी हम फिर आएंगे इंशाल्लाह. सो देखें, ये सारे बैरियर्स हैं, एंड दीज आर मेंटल बैरियर्स. और जो हॉस्पिटैलिटी और जो फ्रेटर्निटी उनको मिली है रीजन से, और जो एक्सपीरियंस मिला है ट्रायथलीट को, एंड ही मैप्ड अ रेस, यू नो, स्विम सेगमेंट, बाइक सेगमेंट और रन सेगमेंट, टॉप क्लास. अमेजिंग. मुझे ये बताएं कि आपकी फैमिली में कोई है स्पोर्ट्समैन, या ये जो आप खुद से स्पोर्ट्समैन हैं, कोई इंस्पिरेशन थी, कोई रोल मॉडल था आपके माइंड में, या बस बाय स्ट्रोक ऑफ लक इट गॉट इंस्टिल्ड इनटू योर बोन्स एंड यू टर्न्ड आउट टू बी द फर्स्ट स्पोर्ट्समैन ऑफ योर फैमिली? या नो, आई थिंक इन जनरल, यू नो, हर को मिक्स एंड मैच होता है शौक. स्क्वॉश किसी ने खेली कुछ, but to an extent that I pursued and, you know, sort of reinvented myself in early 40s, I don't think so. कोई किसी को मैं कह सकता हूँ कि you know, legacy sportsman है. But I think I definitely give credit to my parents' genes, right? So something must be right, which I'm doing well. So and of course the ecosystem जो मैंने आपको पहले शुरू में शेयर किया जी. And when we talk about your kids, do you think they would follow your suit? Again, बच्चों की अपनी ज़िंदगी है, and wherever and how much I can inspire, it's up to them to seek inspiration, right? So I can't force them. One, two, I think role modeling बहुत important होती है, but mentoring equally important होती है. And जहाँ तक उनका future, I think they have done extremely well. And going forward, I think they'll do even better than me, inshallah. Great, as great. time goes. So when we talk about Pakistan, on national level, you see, hockey would be the national game. But now it has become something it used to be. And now cricket has taken the first seat over it. And taking the lead role. लेकिन क्रिकेट की ऊपर जितनी अटेंशन दी जाती है, उसकी वजह से बाकी सारे जो स्पोर्ट्स हैं वो निगलेक्ट हो जाते हैं. अब सारी की सारी जो स्पोर्ट्स हैं उसमें एवरीवन इज़ एक्सेलिंग, और बहुत ज़्यादा मार्जिन है और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है. तो आप क्या कहेंगे कि क्रिकेट के अलावा बाकी स्पोर्ट्स पे किस तरह ध्यान दिया जाए, और गवर्नमेंट से क्या कहेंगे, मौजूदा हुकूमत से क्या कहेंगे कि इस पर ध्यान दे, इसकी तरफ भी अटेंशन होनी चाहिए? इसी बिल्कुल होनी चाहिए. आई थिंक क्रिकेट
in the new in current era and era to come, देखें स्पोर्ट्स जनरली लोकली तो खैर इतना नहीं, अब तो खैर इन आवर नेबरिंग कंट्री बहुत ज़्यादा हो गया, अब पाकिस्तान इज़ कैचिंग अप ऑन दैट टू, इज़ द लेवल ऑफ कमर्शलाइजेशन. ठीक है, नॉट टू फॉरगेट कि उसका जो है ना, देयर लॉट ऑफ there is a lot at stake at cricket, whether it's the players, whether it's the ecosystem, whether it's the whole thing. So naturally priority media हर चीज़ उसको बहुत coverage देती है. हाँ, however athletics, biking and swimming, ये human endurance events होते हैं और हर इंसान को पता होता है वो किस में क्या अच्छा कर सकता है और एक्सेल कर सकता है. टू योर पॉइंट, बिल्कुल हमारे यहाँ पे एक इकोसिस्टम होना चाहिए जो कि लोगों को आइडेंटिफाई करे और उस कॉम्पिटेंस लेवल से उसको नर्चर करके ऊपर लेकर आए और उसको फिर इंटरनेशनल इंटर प्रोविंशियल से आप लेकर आएँ और आप इंटर प्रोविंशियल से पहले इंटर स्टेट लेकर आएँ और फिर आप उस टैलेंट को कम्पीट कराया करें. अब तो ये रेसेस होती नहीं है आपकी यहाँ पे, जिस मैं बात कर रहा हूँ इन 80s जब मैं करता था. अब तो आई डोंट थिंक सो दिस रेसेस टेक प्लेस. होती हैं एडहॉक, होती हैं एडहॉकिज्म हैज़ टू फेड अवे. एक अगर स्केड्यूल है, अनलेस द वर्ल्ड इज़ फॉलोइंग अपार्ट, दैट डेट शुड बी, जैसे ओलंपिक्स होती है ना, डेट अनाउंस हो जाती है और होती हैं फिर. इसी तरह आपकी पाकिस्तान के अंदर भी होनी चाहिए. वो टैलेंट इमर्ज होगा, टाइम लगेगा बट इट विल इमर्ज एंड इट विल बी अ सस्टेनेबल future for our generations. Pakistan, for the betterment of our youth especially. So sir, before we wrap up the session, which is going really interesting, I would like to know, you being a motivational speaker, how do you take your life when you look back? Any regrets? Rule number one, I learned myself quite early in life, never carry excess baggage. Oh, good, good one. So the moment you realize कि यार never carry baggage, good. वो जब आप ड्रैग करना शुरू कर देते हैं ना, आज आपने एक चीज़ ड्रैग की है ना, then it becomes a legacy. You start dragging other negative forces. Right. So वो एक तो आप negative forces से दूर रहें and always be very clear in your goals, what you want to achieve. जिंदगी में देखा high lows आते रहते हैं, but you need to be resilient enough and perseverant to achieve your goal. अब हर एक का गोल डिफरेंट है, मेरा आपका relative to each other. हाँ. But one should needs to be passionate just like you. हाँ. Consistent. हाँ, मतलब किसी का मॉनेटरी गोल होता है, राइट. किसी का होता है कि आपकी एक आप लेगेसी छोड़ के जाएं. किसी का होता है कि आपने 10 बिल्डिंगें खड़ी करनी है. मतलब हर एक एवरीवन हैज देयर ओन गोल्स, राइट. वन लास्ट क्वेश्चन. यूजुअली अगर कोई डिप्रेशन या किसी ट्रॉमा में हो या किसी भी साइकोलॉजिकल इशू से गुजर रहा हो तो उसको कहा जाता है कि आप स्पोर्ट्स की तरफ चले जाएं, स्पोर्ट्स खेलें. लेकिन आप तो ऑलरेडी एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो आप तो उस फर्स्ट स्टेप पर हैं. तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा फेज़ आए या आया हो कि जिसमें यू फेल्ट साइकोलॉजिकली बीइंग अ बिट स्ट्रेस्ड आउट, तो आप तो ऑलरेडी स्पोर्ट्स मैन है, तो फिर आप तब क्या करते हैं? So I try to, as an endurance athlete, I try to test my limits. All right. और मैंने उसके अंदर अपने आप को यही रखा हुआ है कि there are no limits, also set no limits. Yeah. And by the way, I've got copyrights on that. So वो उसमें जिस तरह लास्ट ईयर मैंने 100 miles अल्ट्रा ट्रेल की थी. That was my first event. Great, wonderful. So sky is the limit. Sky, yeah. We would rather say that.